previous class. So everyone can see the screen. All right. So yesterday we started with the concept of the wave properties of particles. So we have already studied what is a de Broglie wavelength, and we know that moving particles, especially moving microparticles, they have a wave associated with them, which is known as de Broglie wave, right? Why I say microparticle? Because all particles, even we have de Broglie wavelength associated with us, but it is very, very insignificant, right? So it becomes these de Broglie waves actually become significant on a micro scale. For macroscopic bodies, for larger bodies, it is these waves are not significant. So the existence of these waves is actually significant and important for microscopic particles. That's why micro. That's why the word microscopic. So all the microscopic bodies have a significant presence of waves, which are known as de Broglie waves, and they are in motion. Number one. Number two, we went on to define how are those waves moving and what were the velocities. So then, those concepts formed a discussion of phase and group velocities. So we got to know yesterday that these particles actually, when they move, right? So they move with, and when they move, they have waves, and these waves then are moving in packets. So these packets are known as wave packets, and these wave packets are consisting of lot many individual waves. So there can be a case if all these individual waves are having the same velocity, then the wave packet will have the same velocity as the individual wave. So this was your phase velocity, right? But if these individual waves are moving with certain different velocities, then then the velocity of the wave packet will not be the same, will be different from the individual velocity. This individual velocity of the wave was the phase velocity, and the velocity with which the group velocity, with which the packet moves, is the group velocity. In the case of de Broglie group velocity and de Broglie wave phase velocity, we saw that the phase velocity was coming around to be c square by v, right? It was coming around to be c square by v, and the group velocity was coming out to be simply v, where v was the velocity of the body. So yeah, we saw that this de Broglie phase velocity is not actually violating the STR. It is not actually violating the STR. Why? Because we know that whenever the body moves, right? Whenever the body moves, so what is relevant to us? The relevant velocity is the group velocity, because these waves move in a wave group. So, and we can see that the wave group is having a velocity which is very much less than the velocity of light. So this phase velocity has no physical significance, even though we are getting a value which is greater than the value of a speed of light, but it has no physical significance, because when a body moves, the waves that are moving along with it, they are moving not individually but in packets, right? So no STR, no postulate of STR is being violated. So this was what we had studied till yesterday. So now we move on to a topic which is known as particle diffraction. All right, particle diffraction, and this was discovered by Davison and Germer. So Davison and Germer were performing a certain experiment which led to the discovery of particle diffraction. So what was it? So now, as we have already studied and seen lot many times, and in the previous lectures as well, I had told you, and you already know this, that diffraction, interference, polarization is a wave phenomena, right? Diffraction is a wave phenomena. So we can assume, anyone would assume, that if de Broglie hypothesis is valid, if moving microscopic particles, are actually having a certain wavelength, then those waves
those matter waves should also show diffraction, right? So one could assume that. Now, what is diffraction? I hope you already know this definition, but still we can discuss a little bit. Diffraction, what, how does diffraction take place? Suppose if you have a small hindrance, if you have a certain slit, whatever, on which a light of a certain wavelength is incident. Now, if that light of a certain wavelength, if this wavelength is actually comparable with the dimension of this hindrance or the slit, right? Then diffraction takes place, right? So this was your basic definition, which you must have studied also last semester. I hope you all have studied this. पढ़ा है ना आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yeah. So because of this dimensionality that is equivalent, जो आपकी वेव की जो डायमेंशन वेवलेंथ की जो डायमेंशन है, दैट इज कंपेरेबल टू दिस, जो आपका जिस पे वो इंसिडेंट है उस ऑब्जेक्ट पे या फिर उस स्लिट पे उसके डायमेंशन से, देन डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, करस्पॉन्डिंगली कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, और आपके एनर्जी मैक्सिमा से मिनिमास आपको दिखते हैं, राइट? तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या था इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में? इंटरफेरेंस के अंदर आपके जो एनर्जी मैक्सिमा तो मिनिमास थे, दे वर कांस्टेंट इन इंटेंसिटी, राइट? बट इन डायफ्रैक्शन दे वर वेरिंग, डिक्रीजिंग थे, they were not constant in intensity. So there was an ultimate maxima. उसके बाद जितने भी आपको मिनिमास मिल रहे थे वो सारे डिक्रीजिंग विद आपके टाइम थे, वो सारे आपके डिक्रीजिंग इन इंटेंसिटी थे. So this was the fundamental difference between diffraction and interference. So you can go through it if you don't remember. Now, what kind of diffraction are we talking about here? So when we say the kind of diffraction that you study now is because of the आपने have you all do you know the concept of grating? आप लोगों को आपने पढ़ा है concept of grating? आपने practical experiments किए हैं ना अपने semester में कुछ? Do you know this? What is Sir, what is diffraction grating? practical experiments नहीं किए, but greeting, हाँ, but if you it do was a know, real. हाँ हाँ, so you do know what is a grating, right? Yeah, yes, sir. हाँ, सो बेसिकली जो आपकी एक ग्रेटिंग होती है, सो ग्रेटिंग आपको जस्ट टू गिव यू अ क्विक सो फिर देन यू माइट बी नोइंग व्हाट इज ब्रैग्स लॉ एज वेल. आप मतलब ब्रैग्स लॉ की आपको आइडिया तो होगा व्हाट इज ब्रैग्स लॉ? पढ़ा है आप लास्ट सेमेस्टर? Bragg's law, I don't think we पढ़ा है ओके last time. ओके ओके. सो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपकी, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपकी एक ऑप्टिकल एक 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 डिवाइस है, मान लीजिए, मेड अप ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट विच इज जनरली ग्लास, और उसके अंदर आपको पता होगा कि देर आर सर्टेन रूलिंग्स, है ना? रूलिंग्स होती हैं पीरियोडिक डिस्टेंस पे, राइट? जिसपे जब लाइट पड़ तो जो वो जो पीरियोडिक डिस्टेंस जो है आपका उन रूलिंग्स का, दैट इज कंपेरेबल टू द लाइट वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दैट ग्रेटिंग. एंड बिकॉज ऑफ देन जब वो लाइट उस आपकी ग्रेटिंग पे उन रूलिंग्स पे फॉल करती है, देन इट गेट्स डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम दोज रूलिंग्स, राइट? एक तो आपका कंसेप्ट है आपका डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, राइट? तो उसमें कई सारे नंबर ऑफ उसमें लाइंस होती हैं, आपको याद होगा. आपने पढ़ा है ना, आपने देखा तो होगा नहीं, आई एम श्योर, बिकॉज आपका तो ऑनलाइन चल रहा है. लेकिन जो मैं ये रूलिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, इसमें देर आर 14,000 15,000 20,000 लाइन्स पर इंच, राइट? तो ये आपकी लाइन्स जो पर इंच होती हैं, ये आपकी मान लीजिए स्लिट्स हैं. अभी मान के चलिए ये 14,000 स्लिट्स हैं एक इंच के अंदर. सो ये डायफ्रैक्शन, तो होपफुली, आई डोंट नो, आई मीन in the next class I will try to actually show you the photo of how a diffraction grating looks like, but for now you can simply imagine it to be, अगर आप लोगों ने देखा, अगर उसकी फोटो नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं. So it is just an optical device in which lot many lines are etched on the glass. और ये जो लाइंस होती हैं आपकी, ये इनका नंबर जो होता है वो 13,000 14,000 15,000 पर इंच होता है. And when the light falls on these lines, diffraction takes place. Why? Because ये जो लाइंस का जो डिस्टेंस है, जो इन लाइंस का जो आपका डिस्टेंस है, पीरियोडिक डिस्टेंस जो लाइंस बनी हुई हैं, so this distance is comparable to the wavelength of the incident light. अब वो चाहे, अब जनरली हम तो आपके लैब में एक्सपेरिमेंट्स जो आपके होते, तो वो विजिबल लाइट ही हम यूज करते हैं, आपकी मर्करी लाइट, सोडियम लाइट, सो इट्स इन द विजिबल रीजन. So this is the kind of diffraction that we are talking about. So in the diffraction here, जो है, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया अभी ग्रेटिंग, राइट? अभी हमने एक ऑप्टिक तो ग्रेटिंग को भी हमने डिफाइन किया. सो जो diffraction की हम बात यहाँ कर रहे हैं वो आपका एटॉमिक प्लेन से हो रहा है.
जिस डायफ्रैक्शन को हमें स्टडी करना है वो आपका एटॉमिक प्लेन से हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ऑल्दो हमें आगे स्लाइड स्टडी करनी है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। तो ये हमारा डायफ्रैक्शन जो हो रहा है वो इन एटॉमिक प्लेन से हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सआरडी का क्या टेक्निक होती है, एक्सरे डायफ्रैक्शन होता है, वैसे ही ये आपका एक वेव डायफ्रैक्शन है। मतलब क्या हुआ इसका? हमारा कोई एलिमेंट है जिसपे हमारी, मान लीजिए हमारी आपकी कोई भी वेव्स इंसिडेंट है। अब मान लीजिए एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, विजिबल कोई भी रेज है, विजिबल रेज है। तो हमारा जो एलिमेंट है जिसपे वो इंसिडेंट है, अब वो एलिमेंट कंपाउंड वट, तो वो एटम्स का बना हुआ होता है। एनीथिंग इज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। सो व्हाट हैज बीन फाउंड आउट दैट जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आपका जो रूप है, जो प्रेजेंटेशन है, वो इस तरीके से होता है कि योर एटम्स आर अरेंज्ड इन प्लेन्स। तो ये आपके प्लेन्स हैं, ये यू कैन सी दिस। तो ये जो एटम्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन रोज। ये देखिए, ये एक रो है, ये एक प्लेन है। दीज ब्लैक डॉट्स आर नथिंग बट एटम्स, एंड दीज आर रोज। ये जो आपकी डॉट 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 लाइंस जो हैं, दीज आर आप मतलब इसको अगर आप इसको आप 2D में अगर इमेजिन करेंगे, तो ये एक रोज हैं एटम्स की, राइट, अरेंज एज प्लेन्स, राइट। 2D में इमेजिन करिए इसको, तो ये अरेंज एज प्लेन्स है। सो दीज आर डिफरेंट प्लेन्स। ये एक प्लेन ऐसे, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन, करते करते इनडेफिनेटली इन अ सिंगल क्रिस्टल दे कैन बी लॉट मैनी एटॉमिक प्लेन्स, जिसमें आपके एटम्स रो वाइज अरेंज्ड है। सो दीज प्लेन्स एक्चुअली एक्ट एज ग्रेटिंग। जो भी हमने ऑप्टिकल एलिमेंट की जो हमने बात करी, जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो आपने नाम सुना हुआ है, सो दीज एटॉमिक प्लेन्स एक्चुअली एक्ट एज ग्रेटिंग। वाई? बिकॉज ये जो इनका जैसे मैंने आपको क्या बोला, 14,000 लाइन्स पर इंच, उन लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ है। तो दिस, तो ये जो आपका एटॉमिक प्लेन्स हैं, इनका ये जो डिस्टेंस है डी, दिस इज कंपेरेबल टू द लाइट विच इज फॉलिंग। तो जब ऐसा होता है कि आपके किसी एलिमेंट या कंपाउंड पे कोई लाइट पड़ती है जिसकी वेवलेंथ उस एलिमेंट या कंपाउंड की जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है क्रिस्टल की, उसके कंपेरेबल है, देन डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। इंसिडेंट लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्टेड लाइट वापस निकलती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है कई सारी बीम्स का, जिससे आपको मैक्सिमम मिनिमास मिलते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ डायफ्रैक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सबको समझ में आया, एवरीवन? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ। आ गया तो, रिपुंजय? सर एक बार और रिपीट कर लीजिए सर इसको। ओके। जो आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, जैसे हमने बात करी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपकी क्या है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है आपकी, उसमें कई सारी लाइंस पर इंच एज्ड है, राइट। सो जब आपकी इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे लाइट पड़ती है, विच इज़ कंपेरेबल टू द जो आपकी उन लाइंस की स्पेसिंग के बराबर डायमेंशन की में वो इक्विवेलेंट होती है, then diffraction takes place. So we are correlating that concept with here. जब आपकी कोई भी आपका जो कोई भी एटम या आपका कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है, तो वो आपके कई सारे एटम से बना हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है बड़ा सा, वो कई सारे एटम से बना हुआ है, ठीक है। सो जब हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं, सो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वी सी दैट आपके जो एटम्स हैं वो एक प्लेन में अरेंज्ड है, राइट। ये मतलब अभी ये कैसे है, ये आपको अगर आप लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो ये आपका उसका पार्ट है। सो फॉर नाउ यू कैन सिंपली लिसन to this fact that atoms are arranged as rows in planes in the crystal structure. So ये आपके जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये एटम्स हैं। ये कनेक्टिंग जो लाइंस हैं, ये आपकी एटॉमिक रोज हैं। और ये टोटल अगर आप इसको 2D में इमेजिन करेंगे, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज है। ये एक प्लेन है, उसके ऊपर दूसरा अरेंज प्लेन है, फिर तीसरा प्लेन है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते ये प्लेन्स हैं। तो ये प्लेन्स हैं ऑफ एटम्स, जिनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो जो हमने एटॉमिक, अभी हमने एलिमेंट की बात करी, ऑप्टिकल डिवाइस की बात करी, ग्रेट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें आपकी जो रूलिंग्स हैं, जो लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर कंपेरेबल हो आपकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से, तो डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। सिमिलरली जब हम किसी एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर अपनी लाइट को इंसिडेंट करते हैं, एक्सरे हो, आपका विजिबल लाइट हो, कोई ऐसी भी लाइट हो, तो अगर उस लाइट की वेवलेंथ आपकी इन एटॉमिक प्लेन्स के
डिस्टेंस के बराबर, डायमेंशन के बराबर हो, देन डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. तो बेसिकली ये जो आपके एटॉमिक प्लेन्स हैं, ये उन रूलिंग्स, जो लाइंस थी आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो आपकी लेबोरेटरी में रखी हुई होती है, उसकी तरह काम कर रही है. तो जब इंसिडेंट बीम फॉल करती है लाइट की या किसी भी रेडिएशन की, तो and if that wavelength is comparable to the interplanar distance d, then कई सारी बीम्स जो रिफ्लेक्ट करती हैं यहाँ से, ये तो एक बीम है और इसका ये एक रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग हो रही है, वट एवर. रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डायफ्रैक्टेड, ये सारी एक ही टर्मिनोलॉजी है. रिफ्लेक्टेड बीम, स्कैटर्ड बीम, डायफ्रैक्टेड बीम, एक ही टर्मिनोलॉजी है, इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो. सो कई सारी जब जब फॉल करेंगी इस पे, कई सारा फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन निकलेगा, then all those beams will interfere constructively to give you those incident maxima and minima. जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर अपने डिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा ना, इंसिडेंट आपका जो मिनिमा मैक्सिमा आते हैं, तो ये उससे जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर सारी बीम्स निकलेंगी, दे विल कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर टू गिव यू दोस मैक्सिमा द मिनिमा. तो दिस इज द डिफ्रैक्शन कंसेप्ट ऑफ अ लाइट जो किसी एक क्रिस्टल पे या फिर मान लीजिए कंपाउंड पे, एलिमेंट पे फॉल कर रही है. राइट? अब ठीक है, अब समझ में आया? Yes, sir. गुड. सो ये हमें स्टडी करना है कि अभी ये मतलब ये अभी हो क्या रहा है, अब हमको ये स्टडी करना है. सो एज आई सेड, नाउ इफ द वेवलेंथ ऑफ द, अब मान लीजिए, अब जैसे अब हम किसी भी, अब हमको अपना पार्टिकल का ही हमको डायफ्रैक्शन स्टडी करना है, ये तो भी हमने डिफाइन किया रेडिएशन से, ठीक है. लेकिन हमको स्टडी करना है मैटर वेव्स. कि मैटर क्या, मैटर वेव डायफ्रैक्ट कर सकती हैं जैसे कि हमारी नॉर्मल लाइट वेव, एक्स जो लाइट हमारी एक्स विजिबल लाइट हमारी डायफ्रैक्ट कर रही है, हमको पता है. तो क्या हमारी पार्टिकल वेव्स, जो हमारी मैटर वेव्स हैं, ये भी डायफ्रैक्ट कर सकती हैं? तो कब कर सकती हैं? मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उनको एक्सीलरेट कराया 100 eV से, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी दे विल हैव अ सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है. जो इतनी, बिकॉज दे आर मूविंग विद सच हाई वेलोसिटी, तो उनके पास देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतनी होगी, ठीक है. नाउ वी नो दैट दिस इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, जो आपकी क्रिस्टल स्पेसिंग है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ नियरली 2 to 3 एंगस्ट्रॉम. और अगर आप किसी भी वेवलेंथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप 100-200 ईवी में एक्सीलरेट कराते हो, देन बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, जो आपकी वेवलेंथ होगी एसोसिएटेड, वो कितनी होगी? नियरली 1 एंगस्ट्रॉम. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि सम काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन शुड टेक प्लेस because the wavelength of the electrons having an energy itna will be equivalent to the interatomic spacing of the crystal having dimensions itna, right. So we can assume that diffraction effects due to the wave nature of electrons or any such particles may take place, right, if these particles are incident on the crystal or the atoms. So this was what was done precisely by Davison and Germer. ठीक है. So उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया. तो इन दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप देयर इज दिस फिलामेंट, हॉट फिलामेंट, जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं. देयर इज दिस एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज. So you can just simply vary the potential difference between the filament F and anode to accelerate the electron. ठीक है. So this acceleration can be varied to your convenience. Basically acceleration का मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. Acceleration is nothing but providing energy to the electrons. Now, when these electrons emerge from a opening in the anode, so then they fall on a rotating nickel crystal. ये क्रिस्टल है जो निकल का, विच इज रोटेटिंग ऑन अ एक्सिस. अब जैसे मैंने आपको बताया, अब निकल का क्रिस्टल है ये, तो इसके अंदर एटॉमिक प्लेन्स होंगे. So this will be having atomic planes like this, right. तो बेसिकली हम डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं निकल क्रिस्टल से. जो ऐसे निकल के एटम्स होंगे जैसे ऐसे अरेंज्ड हैं, हम उससे डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कहाँ पे? ये आपकी डायफ्रैक्टेड बीम है, या कोई डिटेक्टर है. ये डिटेक्टर आपका मूव कर रहा है सर्कुलर स्केल पे. वाई सर्कुलर स्केल? बिकॉज ये तो बस आप एक 1D स्ट्रक्चर में ये फोटो देख रहे हैं, बट अदरवाइज जो सेटअप है उसमें तो आपकी लाइट कहीं भी निकल जाएगी. डायफ्रैक्शन तो 360 डिग्री एंगल कहीं भी हो सकता है ना. ये तो आप खाली 1D आप अपने सामने ही फोटो देख रहे हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन तो पूरे पूरे सारी डिग्रीज में होगा. सो दिस इज सर्कुलर स्केल. और डिटेक्टर जो है वो इस सर्कुलर स्केल पे मूव करता है. तो जहां जहां आपकी वो लाइट जा रही है, तो वहां वहां ये हमको मूव कर करके डिटेक्ट कर रहा है एट वेरियस एंगल्स, राइट. तो डिटेक्टर डी मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट स्कैटर्ड. यहाँ से ये आपकी स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड या डायफ्रैक्टेड बीम निकल रही है, वो उसको डिटेक्ट करता है, इट मूविंग ऑन अ सर्कुलर स्केल. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपकी इंटेंसिटी होगी, जो आपकी स्कैटर्ड बीम की जो इंटेंसिटी है, उसको हम
डिटरमिन कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ दिस एंगल। ये आपका स्कैटर्ड एंगल है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द स्कैटर्ड बीम, दिस एंगल इज नथिंग बट योर स्कैटर्ड एंगल। सो बेसिकली व्हाट वी विल स्टडी, जो आपकी इंसिडेंट बीम की जो इंटेंसिटी है, इट कैन बी स्कैटर्ड बीम की जो इंटेंसिटी है, इट कैन बी स्टडीड एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल। ओके, सो क्या हुआ, अब जब हमारा स्कैटर्ड बीम हमारी फॉल करती है डिटेक्टर पे, तो सर्टेन सिग्नल इज प्रोड्यूस, सो दैट सिग्नल इज नथिंग बट डिटेक्टर करंट, जो हम यू वर्ड यूज कर सकते हैं, डिटेक्टर करंट। तो जो आपकी डायफ्रैक्टेड बीम जो इलेक्ट्रॉन्स की पड़ रही है, सो डिटेक्टर की टर्मिनोलॉजी में इट इज नथिंग बट अ डिटेक्टर करंट। ठीक है, सो अ ग्राफ कैन बी प्लॉटेड बिटवीन दिस बीम और करंट, कुछ भी आप यूज कर लीजिए टर्मिनोलॉजी, वन एंड द सेम थिंग, एंड द एंगल। सो दिस एंगल जो ये मूव कर रही है यहाँ पे डिटेक्टर, वर्सेस द स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी या करंट, ये आपका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। ओके, सो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। अच्छा, अब क्या होता है कि दिस इज अ पोलर ग्राफ। वाई पोलर? बिकॉज वी आर सिंपली दिस, ये आपकी एक्स एक्सिस पे हमारा जो वेरिएशन हो रहा है वो आपका स्कैटरिंग एंगल का हो रहा है। सो वेर एवर एनी एंगल इज इन्वॉल्व, सो दैट इज अ पोलर ग्राफ, राइट? पोलर हियर मीन्स angle. So these graphs for different intensities and different densities of the scattered beam versus the angles were plotted for different accelerating potentials. ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये जो आपका बिटवीन द फिलामेंट एंड द एनोड जो आपके एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल हमने मेंटेन करे हुए हैं, सो फॉर डिफरेंट स्कैटरिंग पोटेंशियल्स these polar graphs between the scattered beam intensity and the angles were plotted. So 40 वोल्ट, 44, 42 वोल्ट, 43 वोल्ट, 44 वोल्ट करते 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 50, 55, 56 तक, काफी आगे तक 54, 55, 56 वोल्ट से हमने ये ग्राफ हमने प्लॉट करे। ठीक है, सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि ये आप हम्प देख रहे हैं एक, ये हम्प, so this hump is very much prominent at 54 volt, but when the accelerating potential was at 44, a slight hump was observed. You can see that photo in Bizer. ये बाइजर के अंदर आप वो वेरिएशन देख सकते हैं, इन बाइजर दैट गुड वेरिएशन इज गिवन। So at 44 volt, a little hump was observed in the polar graph, which increased to this sharp बिल्कुल एक maxima, which increased to this sharp एक maxima at 54 via maxima। और आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी है, राइट, आपकी इंटेंसिटी देखिए ऐसे बढ़ रही है, एक मैक्सिमा आया, देन कम होना शुरू हो गई। देखिए कम होना शुरू हो गई, इंटेंसिटी जब कम होना शुरू हो गई, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ मैक्सिमा। सो at 54 volts, this sharp hump was maxima was observed, corresponding to a scattering angle of 50 degree. So 50 डिग्री पे एंड एट 54 एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, जो वोल्टेज ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल आपका, दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ वाज ऑब्जर्व। सो दिस मैक्सिमा एक्चुअली इंडिकेटेड कि सब कुछ हो रहा है, डायफ्रैक्शन टाइप का कुछ फिनोमेना तो हो रहा है, बस तभी हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमा आया है, और उसके बाद से हमारी इंटेंसिटी गिरना शुरू हो गई है। राइट, आपको याद होगा आपके डायफ्रैक्शन के अंदर भी बिल्कुल सेंट्रल एक मैक्सिमा आता है, उसके बाद से इंटेंसिटी गिरना शुरू हो जाती है। सो दीज साइंटिस्ट वर एबल टू जस्ट डिड्यूस कि कुछ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हुआ है। तो वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अब वो हम स्टडी करते हैं। सो एज आई सेड, जो आपकी ये जो रोज है, राइट, ये जो आपकी जो रोज है, these rows in the nickel crystal can act as rulings of a natural diffraction grating। जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो diffraction grating है, उसकी जो रूलिंग्स होती हैं, जो आपकी लाइंस हैं, उसी की तरह ये निकल क्रिस्टल के एटम्स कैन एक्ट एज अ नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। सो ये जो हम्प आया 54 डिग्री पे एट 50 डिग्री एंगल, बेसिकली इस एंगल पे और इस एक्सिलरेटिंग वोल्टेज पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी इलेक्ट्रॉन की, दे अंडरवेंट अ डायफ्रैक्शन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट 54 वोल्ट पे जो हमारी एनर्जी के साथ जो अब जो थी इलेक्ट्रॉन्स के, दे अंडरवेंट अ डायफ्रैक्शन एट 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल, राइट? सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि ब्रैग्स लॉ आपने पढ़ा है कि नहीं। सो एक्चुअली जो देन वी वोंट, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, देन वी वोंट गो टू द डिटेल्स, बिकॉज ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट है। सो बेसिकली आपका जो डायफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, इट इज गवर्न बाय ब्रैग्स लॉ। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज योर ब्रैग्स लॉ, this is your Braggs law, 2d sine theta is equal to n lambda, which is governed by the these, जो आपका ड्यू टू एटॉमिक जो आपका स्पेसिंग की वजह से जो आपका स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है, दैट इज गवर्न बाय द ब्रैग्स लॉ।
So this lambda, as you can see, will be the incident beam wavelength. ठीक है, जो wavelength आपकी फॉल कर रही है आपकी उसकी वेवलेंथ है. D can be the interatomic spacing. Sin theta is the incident angle. Sin theta here is the glazing incident angle of the beam, right? इस केस में अब वो ज्योमेट्री में हम नहीं जाएंगे, बट इस केस में जो आपका 65 डिग्री है, incident angle that the beam that the wavelength is making with the planes, right? So theta is the angle which the incident beam is making with the interatomic planes, right? So हम ज्योमेट्री में नहीं जाएंगे. सो हमने ऐसा केस अज्यूम किया है जिसके अंदर नंबर वन हमारा इंसिडेंट बीम का एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्लेन एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन आर इक्वल, राइट? तो एज आई सेड ये सब सॉलिड फिजिक्स का पार्ट है. सिंस आप लोगों ने अब तक ये नहीं पढ़ा है, सो वी वोंट गो देयर इन द डिटेल. जब आप पढ़ेंगे कभी, देन यू विल सी देयर कि इसका डेरिवेशन क्या है. तो इट हैज अ वेरी बिग मैथमेटिकल डेरिवेशन, सो हम उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं. But for your knowledge here, you can simply assume that we have assumed here that the angle of incidence of the beam respect to the plane is equivalent to the angle of reflection of the beam with respect to the plane. और इस केस में वो 65 डिग्रीज है. इस केस में हम स्टडी जो कर रहे हैं, ये हमारा जो स्पेसिफिक डाइवर्सन जर्मर का जो हमारा केस है, उसके अंदर वो 65 है. तो ये आपका एंगल विद रिस्पेक्ट टू में 65 है, और ये भी 65 है. ये आपको दिख रहा है कि 90, आपको 90 डिग्री के साथ दिख रहा होगा, लेकिन ये है नहीं, ये एक्चुअली 65 ही है. वो कैसे हुआ डिराइव, वो एक मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन है. तो वी आर नॉट गोइंग देयर. So this is the Bragg's law. N is the order of maxima, right? Again, order आपका order can be n is equal to 1, 2, 3, 4. ये आपने वैसे ये तो आपने डायफ्रैक्शन में पढ़े होंगे अपने, जो आपके मैक्सिमा आते हैं, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो तो नंबर वन ऑर्डर का होता है, और उसके बाद के जो आपके मिनिमा तो मिनिमा से होते हैं वो आपके नेक्स्ट ऑर्डर्स के होते हैं. ये तो आपने पढ़ा हुआ है. तो यू नो व्हाट ऑर्डर्स आर, राइट? आई होप यू नो दैट. एनीवन कैन? Yes, sir. हाँ, गुड. तो वो ऑर्डर्स आपको पता है. सो ब्रैग्स लॉ लेकिन ये है कि फॉर एनी ऑर्डर, अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है आपकी इंसिडेंट लाइट, तो आपका डायफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, राइट? सो दिस इज ब्रैग्स लॉ. सो अब राइट. सो हाँ, यस. सो इस केस में व्हाट वी ऑब्जर्व वाज कि हमारा स्कैटरिंग एंगल जो हमारा 50 डिग्री था, तो फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज सच अ शार्प हम वाज ऑब्जर्व, दिस शार्प मैक्सिमा वाज ऑब्जर्व. सो वी कुड इमेजिन कि ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ही है, राइट? बिकॉज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन हैज द हाईएस्ट इंटेंसिटी. सो अब इसका हम कंक्लूजन क्या निकालें, ये क्यों हो रहा है, कैसे, अगर हम कैसे प्रूव करें इसको कि ये हमारा मैटर वेव से ही हो रहा है. सो कैसा इसका हो सकता है कि हम इसकी एनालिसिस कैसे कन्विंस करें कि ये हमारा मैटर वेव से ही हो रहा है. सो इफ इट बी पॉसिबल टू प्रूव दैट द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इलेक्ट्रॉन्स, जो आपकी डी ब्रॉगली वेव्स हैं एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो अगर हम ब्रैग्स लॉ से कैलकुलेट करें दिस वेवलेंथ, अगर यूजिंग द ब्रैग्स लॉ, इफ वी कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, जो भी हमारी वेवलेंथ जो हमारी इंसिडेंट आपकी बीम की पड़ रही है वेवलेंथ, इफ वी कैलकुलेट दैट नंबर वन, and if we find that that wavelength calculated from Bragg's law is nearly comparable to the de Broglie wavelength of the electron, right? If that wavelength, as calculated from the Bragg's law, is nearly comparable to the de Broglie wavelength of the moving electrons, then we can prove that these electrons or particles can exhibit diffraction, right? अगर हमारा ब्रैग्स लॉ से हमारी अगर हमारी ब्रैग्स लॉ से यहाँ से कैलकुलेशन से जो हमारी वेवलेंथ अगर आ रही है, इफ दैट इज नियरली कंपेरेबल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पार्टिकल डायफ्रैक्शन ही तो हो रहा है. तो वी आर सिंपली प्रूविंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ using the Bragg's law. So we are basically in layman terms, we are simply calculating the de Broglie wavelength from Bragg's law. And since diffraction conditions are being verified, these are being justified, then we can safely assert कि हमारा जो diffraction जो हो रहा है बीम से, वो हमारी particles की ही beams हैं, which ultimately mean that particles also undergo diffraction, right? So anyone has a doubt till here before we start with the mathematical proof of this? So anyone has a doubt till here कि हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था? Anyone has a doubt till here? Anyone?
नो। सो अब ये अगेन ये आपके सारी कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, ये स्टैंडर्ड एक एक्सपेरिमेंट है। सो ऑल दीज वैल्यूज आर नोन। सो निकल की क्रिस्टल की जो आपकी इंटरप्लेनर जो रोज है ये निकल के एटम्स की, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज नोन, डी इज नोन टू बी 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जो आप हम जो केस रेफर कर रहे हैं इसके अंदर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन्स इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम with respect to the plane, ठीक है, with respect to the plane. So the angles of incidence and the angle of reflected and diffracted beam with respect to the family of planes is 65, ठीक है। सो अब 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, आपको पता है कि एन 1 है बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। डी आपका 0.91 हो गया, साइन 65 आपने डाल दी वैल्यू, ठीक है। सो वी गेट लैम्डा टू बी नियरली दिस। सो व्हेन, सो व्हाइल Bragg's law is being satisfied, the wavelength which is satisfying the Bragg law is coming out to be this, ठीक है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? हमारा आपने हमारी जो कैलकुलेशन हमने करी थी आपको याद होगा, हमने पूरे जो कैलकुलेशन हमारा एक फॉर्म आता है वेवलेंथ का यूजिंग द इलेक्ट्रॉन आपका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। आप इसको निकाल भी सकते हैं पूरा एच नो इज इक्वल टू अपना ई वी करके, राइट, हमने पहले वो आपका बुक से भी निकाला हुआ है हमने। So we won't go there. So this is the form of d Broglie wavelength in terms of accelerating potential. So now h is known, m is the mass of the electron, that is known, e is known, and what was v? 54 volt. This was this hump, this maxima was observed at 54 volts. So once we put in all these values, we get lambda is equal to 1.66 angstrom. So clearly they are equal. So hence Davison-Jummer experiment was able to prove that yes, ये जो हमारा diffraction हमारा हो रहा है ये particles की वजह से हो रहा है, because particles की जो waves हैं, particles की जो waves generate हमारी हो रही हैं, those particle or matter waves are having a wavelength which is comparable to these interatomic spacings, and hence particles can also undergo diffraction, which ultimately means that the wavelength है, wavelength है of the waves associated with these particles, any matter waves, they are undergoing diffraction. One and the same thing. Matter waves या particles, they undergo diffraction. This was how this was a particle diffraction was proven by the Davison and Germer experiment. Right? Now, there is one small little part which you can self-study, and that is quantization of energies of a particle in free particle in a box. Although we will study this in quantum mechanics, जो हमारी यूनिट है हमारी quantum mechanics की unit 4, we will study the quantization part in that. But since we are studying since we are studying d Broglie wavelength, so how does that formulation takes place inside a box? जैसे हमने आपको याद होगा हमने स्टैंडिंग वेव्स का कंसेप्ट पढ़ा था कुछ कुछ लेक्चर्स पहले, कि स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं if any wave of a certain wavelength is confined between a barrier, a fixed barrier, then because of the vibrations between those barriers, standing wave form हो जाती है. So applying that principle only, a very small part, अगर आप ये self study का आपका part है, so आप ये देख सकते हैं कि if any particle is confined uh, between two walls of a box, then जो उसकी energy है, it becomes quantized. What do you mean by quantized? हमारी फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज कैसे थी? डिस्क्रीट थी. E was NH nu, right? So E could have been H nu, 2H nu, 3H nu, 4H nu, etc. 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 तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी फ्री जो आपका पार्टिकल है ना बॉक्स, तो उसकी जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज है, और उसका एक फॉर्मुलेशन आता है. अब वो मैं आपको फॉर्मुलेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको. फॉर्मुलेशन वो आपका ये आता है, दिस नियरली वो अलग अलग तरीके से आता है वो, लेकिन जस्ट टू टेल यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ बॉक्स. तो एन एच स्क्वायर बाई एट एम एल स्क्वायर, वेर एम इज द पार्टिकल मास, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एल इज योर लेंथ ऑफ द यू नो द वॉल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स जिसके बीच में ट्रैप्ड है, एंड एन इज योर क्वांटम नंबर. सो यू कैन सी इट इज क्वांटाइज, राइट. एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर होगी, टू एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर होगी, थ्री एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये बहुत शॉर्ट सा एक पार्ट है, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी. तो प्लीज गो थ्रू इट. वी विल टेक इट अप इन डिटेल इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल्सो, जब हम अभी स्टडी शुरू करेंगे इसकी. बट बिफोर दैट यू कैन हैव सर्टेन आइडिया. किसी को समझ में नहीं आएगा, सो वी कैन टेक इट अप इन द क्लास. ऑलराइट.
So now we move ahead, we now move on the last part of this unit, which is Heisenberg's uncertainty principle. Right. Although I have already discussed this a lot many times in the class, सो आई वैसे टोल्ड यू क्लासिकली हमारा जैसे हमारी डेफिनेशन हमारी क्लासिकली हमारी क्या थी, बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस ये करा हुआ है कि क्लासिकली व्हाट वी कैन अज्यूम, मतलब व्हाट वी हैव अज्यूम्ड ऑलरेडी, कि हम किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है और उसकी जो स्टेट है, हम एट एनी इंस्टेंट क्लियरली एंड एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं. सो क्लासिकली हमारा जो नोशन है वो ये है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं. And these two quantities at any time instant define the state of the particle. उसकी position, उसका momentum हम clearly define कर सकते हैं. So this is given by the classical theory of physics कि with total exactness and precision we can define the position and momentum of a particle. But when you move to the microscopic world, in the quantum world, this is not valid. When you move to the quantum world, this is not valid, right? So with the velocity v and time t, the distance can be, the position can be given by x is equal to vt, and momentum is given by p is equal to mv. So substituting the value of v from here, we get x is equal to pt, right? So both these are interdependent. Accordingly, both these are interdependent, position and momentum. But classically, what we have assumed कि position and momentum can be individually determined with precise exactness at the same time t, right? But in the quantum world, this does not happen. In the microscopic world, this does not happen. Why? Why is this not happening? Because when a particle is moving, when a microscopic particle is moving, de Broglie waves are associated with it, and we all know from the earlier lectures that the de Broglie waves move in packets, right? They move in groups. So Schrodinger postulated that a moving microparticle is equivalent to a moving wave packet. आपकी बॉडी मूव कर रही है, उसके साथ कई सारी डीप ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड हैं, एंड दे आर मूविंग इन ग्रुप्स, इन मूविंग इन पैकेट्स, राइट? दैट वेव पैकेट्स में वो मूव कर रही है. नाउ अब जो आपका ये वेव पैकेट है, इट इज़ नॉट लोकलाइज्ड, इट इज स्प्रेड अक्रॉस अ रीजन. जब आप क्लासिकली अज्यूम करते हैं कि यू आर फाइंडिंग आउट द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल और अ मोमेंटम, देन दैट पार्टिकल इज अज्यूम टू बी लोकलाइज, राइट? वो एक पॉइंट है एक स्पेस में, जहाँ पे उसकी वो पोजीशन है और उसी पॉइंट पे उसका एक गिवन मोमेंटम होगा. बट इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो आपका वेव पैकेट है वो लोकलाइज नहीं है, उसकी एक स्प्रेड होती है. इट इज स्प्रेड अक्रॉस अ रीजन. सो इन दैट रीजन यू कैनॉट एग्जैक्टली लोकेट द पार्टिकल. उस वेव पैकेट के अंदर वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, राइट? यू कैनॉट एग्जैक्टली लोकेट द पार्टिकल. सो द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी जहाँ वो पार्टिकल हो सकता है, इट कैन बी इन द मिडल, राइट? वो इन द जो आपका पूरा का पूरा जो वेव पैकेट है, जैसे कि हमने ये कल जो ये आपका ये पूरा एक वेव पैकेट है पूरा, राइट? दिस इज ये आपका पूरा वेव क्लाउड है, ठीक है? अब इस वेव क्लाउड के अंदर वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है. So the highest probability to find that to find that particle will be either in the center, but the probability will diminish as soon as you go to the ends. इन एंड्स पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, सेंटर पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इस पार्टिकल को फाइंड करने की, विच बेसिकली मीन्स कि अनलाइक क्लासिकल थ्योरी, हमारा पार्टिकल लोकलाइज नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है. इस पूरे वेव पैकेट के अंदर वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है. ऑलराइट. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. इट विल बी समवेयर इन द पैकेट, कहीं तो वो होगा ही पैकेट में, बट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू गिव इट्स एग्जैक्ट लोकेशन. So the highest probability to locate the particle would be in the center of the wave packet and zero at the ends, which basically means what? कि जब भी आप पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमिन करने जाएंगे, so there will be a certain uncertainty. There will be a certain uncertainty in determining the position of the particle. Let that uncertainty be given by delta x, right? So let that uncertainty will be given by delta x. So because we have an uncertainty in the position determination, accordingly we cannot determine with exact preciseness the momentum of the particle, right? So conclusion क्या है? What is Heisenberg's uncertainty principle? Both position Sir, and हाँ. sir, on for what factor we determine the possibility of finding the particle in the middle is maximum? यार ये आपका ना एक आपका
दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन, एक पूरा गॉसियन आपका एक सेटअप होता है, राइट? वी अज्यूम दिस कि when a particle is moving, right, we assume that when the particle is moving, then the highest, जो हमने अभी अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जो अभी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमारी यूनिट स्टार्ट होगी, तो मैथमेटिकली वी विल ट्राई टू डिराइव इट। ठीक है, मैथमेटिकली हम जब इंटीग्रेशन लेंगे हमारा, तो मैथमेटिकली आप ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी हमारा पूरे रीजन में आती है, सो ऑन द एंड्स इट विल बी जीरो, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी इन द सेंटर, and that probability curve, right, it will be sort of a Gaussian curve which will be falling off at the ends, जो आपके दो एक्सट्रीम एंड्स होंगे वहां फॉल कर रहा होगा, लेकिन इन द सेंटर ऑफ द रीजन वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये मैथमेटिकली विल ट्राई टू डिराइव, क्वांटम मैकेनिक्स में वो डिराइव करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, Yes, sir. ओके। क्वांटम मैकेनिक्स भी हम हमारा बस नेक्स्ट, ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारा, आप मान लीजिए आपका ये बेस बन रहा है, या क्वांटम मैकेनिक्स आपका पढ़ने का पूरा बेस बन रहा है। तो ये पूरा हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। आपका जो हमने अभी, तो हमने शुरुआत में बस हमने ये वेव फंक्शन डिफाइन कर दिया है ना, ये अभी हमने जो लेक्चर में परसों में लेक्चर जो लिया था, तो हमने ये बस ये फाई डिफाइन कर दिया। अभी आपको ये पता नहीं है फाई क्या है, तो अभी हम ये फाई को डिफाइन करेंगे। ये फाई श्रोडिंगर इक्वेशन से निकल के आएगा, हम वो डिफाइन करेंगे। और उसके बाद वो श्रोडिंगर इक्वेशन से जो फाई निकल के आएगा, उससे हम सारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और सब कुछ डिफाइन करेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि जो हमने स्टडी किया है वो एक्चुअली में हमने जो, अभी तो हमने थियोरेटिकली सब स्टडी कर लिया वर्बली, लेकिन मैथमेटिकली उसका प्रूफ जो है आप अपना क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट में देखेंगे, राइट? तो आप उसमें उसमें भी ट्राई टू शो कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज मैक्सिमम एंड एट द सेंटर, एंड देन इट फॉल जस्ट सिंपली फॉल्स ऑफ इन द एंड, गॉसियन कर्व होता है, ऑलराइट? और हम उसमें देखेंगे हम। So there exists a certain uncertainty in the position determination. Correspondingly, there will be a certain uncertainty in the momentum determination. So Heisenberg uncertainty principle क्या कहता है? Both position and momentum of the microparticle cannot be determined simultaneously with certainty. जो चीज क्लासिकली हम अज्यूम कर लेते हैं कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट टाइम और टी, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमिन्ड ऑफ द माइक्रो पार्टिकल विद एग्जैक्ट प्रिसिशन, ये क्लासिकल थ्योरी कहती है। बट इन द क्वांटम वर्ल्ड it is not possible to determine both the position and momentum of the microparticle simultaneously with exact certainty and precision. This is your Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है? So Heisenberg showed that the product of the uncertainties delta x, ठीक है, in the x coordinate of the particle position and delta px, यानी जो आपका x component of momentum है, will always be of the order of constant h, Planck's constant h। ठीक है, कई तरीके के आपको फॉर्म्स आपको डिफरेंट बुक्स में देखने को मिलेंगे। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एस इज इक्वल टू एच, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एस इज इक्वल टू एच कट अपॉन टू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स इज नियरली मतलब इक्वल टू एच अपॉन फोर पाए। मेरी कई दो तीन तरीके के फॉर्म्स आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप बाइजर कंसल्ट कर लीजिए, चाहे तो आप अवादुनुलू कंसल्ट कर लीजिए, ये कई तरीके के फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारा जो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड फॉर्म है वो ये है, delta x into delta px will be greater than or equal to h bar या h cut by 2, where h bar or h cut is nothing but h upon 2 pi, which basically means h upon 4 pi. So this is the most widely accepted form. Basically हमारा मतलब क्या है, it should be of the order of h, जो डिनोमिनेटर के अंदर 2i या 4 pi आए कुछ भी आ, फर्क नहीं पड़ता। The product of the uncertainty in position and momentum is comparable to Planck's constant, right? So this is your Heisenberg's uncertainty principle. What does it mean? अब मान लीजिए अगर आप ये बोलें कि आपने किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमिन कर ली है, अगर आप ये क्लेम करें कि आपने किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन आपने एग्जैक्टली डिटरमिन कर ली है, तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी हुई? जीरो। If you certainly know the position of a body, then delta x, which is the uncertainty, will be zero. There is no uncertainty. हमने तो exactly with full 100% confidence, 100% certainty हमने उसकी position determine कर ली है। तो जब ये zero हो जाएगा, then this will be infinite, which basically means कि अगर आप बॉडी की पोजीशन को with certainty determine करते हो, then there will be infinite uncertainty in the momentum। यदि एंड जस्ट द वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि यू एग्जैक्टली नो द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल,
then there will be infinite uncertainty in the position of the particle. That is why we say you cannot actually determine both the position and the momentum of a particle with certainty together simultaneously. आप determine नहीं कर सकते. अगर आप कोई एक determine कर रहे हो, then the other one will be infinitely uncertain, right? So, Heisenberg's uncertainty principle for position and momentum states that it is not possible to know simultaneously and with exactness both the position and momentum of a microparticle. So, it is clearly deviating from what we have studied classically. जो हमने क्लासिकली स्टडी किया है हम वो स्टडी नहीं कर सकते. दैट इज वाई मैंने आपको कई बार आपको मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी एग्जांपल आपको दिया है कि हम जो स्टडी करते हैं व्हेन वी एक्चुअली इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन टू बी मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी नो इट्स पोजिशन क्योंकि बिकॉज वी नो कि वो पूरे 24/7 जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है. हमको पता है कि वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है. JK LM शेल है हमारी, उसके अंदर घूम रहा है, राइट. ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बार दिया है. ऐसा नहीं है. बिकॉज इफ वी नो एंड देन वी ऑल्सो क्लेम कि अगर हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो JK LM शेल पर है तो वी कैन इमीजिएटली फाइंड आउट द एनर्जी. हम उसकी एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग सेंट्रीपिटल एंड व्हाट नॉट फोर्सेस. तो दैट इज रॉन्ग. तो हम लोगों ने जो स्कूल में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा है दैट इज रॉन्ग because it cannot happen. Firstly, we don't know where the electron is because from quantum mechanics, आपका जो electron है, it is not moving in circular orbits around the nucleus. It is moving as an electron cloud. ठीक है? It's moving as an electron cloud. उसकी probability कहीं भी हो सकती है. It can be anywhere around the nucleus, right? So we don't know where the position, or we don't know the exact position of the electron. And since we don't know the exact position of the electron, we cannot determine the momentum of the electron. राइट. तो दैट इज वाई जब हम आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमारी जब हम उसकी निकालते भी हैं इवन दो वी आर सिंपली अभी ऑल्दो अभी हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हमारा एक पार्ट है. तो जो हमारा आपका जो आपका यूनिट 3 है उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पार्ट है. तो उसके अंदर तो हम हम ऑल्दो क्लासिकली हम उसको ड्राइव कर रहे हैं. उसके अंदर आप जो देखेंगे तो उसके अंदर हम जितनी भी अपनी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जितनी भी हम एनर्जी लेवल करेंगे डिस्क्राइब, तो वी आर यूजिंग सर्टेन हिंट ऑफ दिस ओनली. लेकिन इट इज रॉन्ग. An electron is not moving in concentric shells around the nucleus. It is moving as an electronic cloud, right? और उस electron cloud के अंदर वो nucleus के around कहीं भी हो सकता है. So we don't know where the electron is. We only know the probability कि वो electron आपका कहीं कि हम उसकी maximum probability कहाँ हो सकती है होने की, right? So this is this is how quantum physics or quantum mechanics is different from classical physics. नाउ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आगे तो आपका एक्स के डायरेक्शन में था, एक्स मोमेंटम और एक्स कोऑर्डिनेट के. वाई मोमेंटम और वाई कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में भी आपका ये सेम फॉर्मुलेशन आता है. जेड मोमेंटम और जेड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में भी नियर एग्जैक्टली यही आता है, राइट. सो फॉर अदर कोऑर्डिनेट्स वी गेट द सेम फॉर्मुलेशन. सो एनीवन हैज अ डाउट टिल हियर? किसी को ये समझ में ना आया हो कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? किसी को समझ में नहीं आई हो ये बात? Anyone has a doubt till here? Why are we assuming what is a सर wave? हाँ. सर हमें कभी भी किसी राइट थ्योरी तक पहुंचना पड़ता होता है तो पहले हमें उससे पहले जो भी थ्योरी फेल हुई है उनको पढ़ना चाहिए. नहीं, तुम्हारी आवाज कट गई. क्या 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 क्वेश्चन है तुम्हारा? अब आप तो क्वेश्चन रिपीट करो, आपकी आवाज कट गई थी. सर मैं ये पूछ रहा था हाँ. अगर हम किसी भी राइट थ्योरी तक पहुंचना होता है तो उससे पहले हमें और जो थ्योरीज फेल हुई है उनको पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज वो हमारी क्लासिकल थ्योरीज है ना. मतलब वो थ्योरीज भी हमारी बिकॉज सी हमारी जो बिकॉज दोज थ्योरीज एक्चुअली मेक आवर लाइफ इजियर टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जैसे आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर रेलिक जॉन्स लॉ पढ़ा, याद है? रेलिक जॉन्स लॉ. यस सर. ठीक है. तो रेले जॉन्स लॉ पूरा गलत तो नहीं है ना. इवन दो रेले जॉन्स लॉ जो है आपका वो आपकी हायर वेवलेंथ पे तो ठीक ही है. हायर वेवलेंथ पे तो वो ठीक ही है ना. लोअर वेवलेंथ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना. तो लो तो उसको उसको करने के लिए हमने प्लैंक्स लॉ मतलब प्लैंक्स लॉ का मतलब पूरा एक डेरिवेशन पूरा एक प्लैंक डिराइव्ड इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ.
So ultimately, what you can say is कि जो हमारी classical theories हैं, ultimately they become the sub part of these quantum theories. They are not totally wrong. They can explain certain amount of certain things. ठीक है? बिकॉज टू मेक अ बिकॉज किसी अगर किसी इंसान को कोई चीज़ अगर हमको लाइटली शुरुआत में एक बेस बना के एक्सप्लेन करनी है, अब स्कूल के अंदर वी सिंपली कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू द कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट. ठीक है, स्कूल के अंदर नो वन कैन टीच यू द कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट की न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड में मूव करता है. सो उस टाइम पे वी हैव टू सिंपली टेल द पीपल की इट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. ठीक है, और ये था भी, दिस वाज अज्यूम टू बी ट्रू. दिस वाज अज्यूम टू बी ट्रू. ये तो 20th सेंचुरी तक यही चल रहा था. लेकिन देन व्हेन क्वांटम थ्योरी केम इन, देन वी रियलाइज द फैक्ट कि कि ये ऐसा नहीं है. एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लाउड इलेक्ट्रॉन का होता है, उसमें मूव करता है. सो इट्स नॉट सो बेसिकली आई थिंक तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि सिंस दोज क्लासिकल थ्योरीज वर यूज टू यू नो derive a lot many formulae, and they were used to explain lot many things. That is why they hold importance. मतलब कई सौ 150 सालों तक भी उन्होंने कई चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं. उसके बाद बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज न्यू, 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई है. लेकिन जो क्लासिकल थ्योरीज हमारी वो तो उसके पहले 100-200 साल से चल रही हैं. So that is why when quantum mechanics was proposed, by all these great minds, तुम्हारे हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, when all these people proposed quantum phenomena, quantum physics, so people were not very serious about it because 100-200 साल से जो classical theories हमारी चल रही थी, no one wanted to deviate from that, right? So that is why वो पढ़ना जरूरी है, बिकॉज उनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो पढ़ना जरूरी है ही उनको. अब बट देन ऐसे केस भी आ जाते हैं जैसे रेले जॉन सॉन्ग का मैंने बताया कि कुछ हद तक क्लासिकल थ्योरी सही है. क्लासिकल थ्योरीज कुछ हद तक सही है, सर्टेन केसेस ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं. बिकॉज वो सर्टेन तो उस केस में क्वांटम फिजिक्स आ जाती है. एंड दैट पॉइंट आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है, इट बिकम्स अ सब केस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, राइट? सो यस. तो नाउ अब जैसा कि अभी मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मुलेशन है. सिमिलरली एनर्जी एंड टाइम का भी आपका, सॉरी ये एनर्जी एंड टाइम है, मोमेंटम नहीं है. एनर्जी एंड टाइम का भी एक आपका मैथमेटिकल आपका फॉर्मुलेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का. उस केस में हमारा क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एच कट बाय टू. इस केस में हमारा डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू. इसकी डेरिवेशन आपकी सेल्फ स्टडी है. इट इज़ वेरी इजी, बहुत बहुत इजी है इसका डेरिवेशन. तो वी वोंट गो इनटू द डेरिवेशन. इसका डेरिवेशन जो है बहुत इजी है. इट इज़ गिवन इन बोथ द बुक्स. आपका वादनुलू में भी दिया हुआ है और आपका बाइजा में भी दिया हुआ है. जिससे आपको समझ में आए आप उसको फॉलो करिए. इट इज़ वेरी इजी. सो व्हाट वी गेट इज दिस फॉर्मुलेशन. तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपकी डेल्टा ई इज अ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, इफ डेल्टा ई इज अ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, देन मिनिमम टाइम आपका मिनिमम टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिमेन्स इन दिस एनर्जी स्टेट विल बी गिवन बाय दिस, राइट? इनवर्स क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा टी इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच एनी पार्टिकल स्टेज इन अ पर्टिकुलर स्टेट, then the minimum in uncertainty in the energy will be given by this, right? ये maximum है तो ये minimum है, and vice versa. And that is because of this inequality that is given in the formulation. So this is the energy time uncertainty formulation of the Heisenberg's uncertainty principle. So ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसमें आपको बेसिकली थ्योरेटिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारा व्हाट इज द पॉइंट, हाउ इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट वी नो क्लासिकली. सो क्लासिकली इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट हमारा पोजीशन और मोमेंटम जो है पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिटरमिन्ड इंडिविजुअली, precisely, and with 100% exactness. Again, in the quantum world, this is not valid. We know that there will be a certain amount of uncertainty in the position and in the momentum, and the product of those uncertainties is nearly comparable to the Planck's constant. So if there's 100% surety in one, then there will be infinite uncertainty in the other, right? So this is your Heisenberg's uncertainty principle. So anyone has a doubt till here? Anyone?
एनीवन हैज अ डाउट? किसी को कोई डाउट हो? सो वी आर नाउ जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है अब हाउ टू अप्लाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बहुत छोटा एग्जांपल है. We will just take up one example. There are two more examples, very small examples in Awadanulu book. तो वो आप फॉलो कर सकते हैं. We can in the class we can just take up this one example to just to show you कि हो क्या रहा है. तो using इसी तरीके से ही बाकी दोनों एग्जाम्पल्स का भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल्दो ये हम करेंगे, दिस वी विल डू इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपकी रेफरेंस दे दिया है कि जो हमारा पार्टिकल, जो हमारा फ्री पार्टिकल है आपका एक ट्रैप्ड इन अ बॉक्स, उसकी एनर्जी क्वांटाइज है. सो इट इज द एनर्जी इज गिवन बाय दिस. ठीक है. सो we can determine this nearly, we can get to this formula using the uncertainty principle. कैसे? अब आपका जो पार्टिकल है वो कंफाइंड है इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल. ठीक है. देन जो अनसर्ट जो उसकी स्प्रेड है, जो उसकी अनसर्टेनिटी है, वो एल ही है. बिकॉज एल में वो कहीं भी हो सकता है ना, वो एल में वो कहीं भी हो सकता है. राइट. जो उसकी जो लेंथ है, जो उसका डायमेंशन है, एल डायमेंशन जो है आपका बॉक्स का, तो वो उस एल के अंदर कहीं भी हो सकता है. तो जो उसकी अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू एल ओनली. तो अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं लाइक दिस, तो व्हाट विल बी डेल्टा पी? इट विल बी दिस एच कट बाय डेल्टा एक्स, यानी एच कट बाय एल. तो नियरली ई क्या हुई? पी स्क्वायर बाय टू एम. दिस डेल्टा पी बाय टू एम, डेल्टा पी स्क्वायर बाय टू एम, करते कराते ये. सो कंपेरेबल, एज आई सेड, नॉट द एग्जैक्ट फॉर्म, कंपेरेबल. ये आपका एच कट स्क्वायर है, so दिस विल बी नथिंग बट एच अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर. दिस कंपेरेबल टू दिस. राइट. सो दिस इज जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक दो और दी हुई हैं, वो आपकी अबादनुलू की बुक में दी हुई हैं. सो फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी, and if you have any issues, then we can take it up in the next lecture, in the next week. All right. So anyone has a doubt? किसी को कोई final day doubt हो before we end this lecture? Anyone has a doubt anywhere? Wave packet, uncertainty principle, particle diffraction, anyone? D Broglie waves क्या है? किसी को कोई doubt हो? नो सर. No, sir. ठीक है. So यूनिट थ्री, नाउ यूनिट थ्री अब आपका हम स्टार्ट थोड़ा सा करते हैं नेक्स्ट वीक से. So unit 1 was done already. Unit 2 is now also done before your CTs. आपके, अच्छा, आपकी सीटी की डेट आ गई क्या? अभी तक आई कि नहीं आई? No, sir. नो अभी नहीं सर. आई है. अच्छा, नहीं आई ना. तो यार मेरे को रिपुंजय प्लीज बता देना कि तुम लोग क्या, कि हमारा एग्जाम कब शेड्यूल्ड है. ऑल राइट. Okay, sir. हाँ. तो अब आपका मैं एक असाइनमेंट आपको दे दूंगा यूनिट 2 का. सो आप प्लीज बाइजर अबादनुलू का ये चैप्टर जो है, मतलब जो आपकी यूनिट 2 है अबादनुलू के अंदर, वो आपकी 18 नहीं, 19 और चैप्टर 20 है, दो हैं. चैप्टर 19 है आपका एटॉमिक फिजिक्स है, और चैप्टर 20 आपको क्वांटम फिजिक्स है अबादनुलू का. तो ये डी ब्रॉगली वाला पार्ट जो हमने पढ़ा है, ये चैप्टर 20 के अंदर है. उससे पहले जो हमने पार्ट पढ़े थे पूरे, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पूरे, वेवलेंथ पार्टिकल, ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिकली वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव हमने जो पढ़ा था, वो आपका अबादनुलू का चैप्टर 19 है पूरा. सो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं. बाइजर के अंदर ये जो चैप्टर्स, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये चैप्टर 2 एंड 3 हैं. सो आपकी मर्जी है, आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी लगे. नाउ हम जो आपकी जो यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, इसमें आपका बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा है. So this atomic spectra is there in chapter, I guess, 19 only of Abadhanulu. Half part of unit is is chapter 19 of Abadhanulu, and the next half part is in chapter 20. लेकिन बाइजर के अंदर आई गेस वो चैप्टर 4 एंड 5 ही है आई गेस. तो वो मैं देख लूंगा, तो आई विल लेट यू नो दैट. आप खुद भी चेक कर सकते हैं प्लीज. दिस यू कैन डू ऑन योर ओन. So we will start with the atomic spectra part, which is the unit 3. All right. So atomic spectra का हम part next week हम एक क्लास आपकी लेते हैं at least, एक घंटे की. So we start in some part. So I will coordinate with the rest of the teachers कि उन्होंने कितना पढ़ा दिया है. So accordingly we'll try to maintain a balance कि उन्होंने जितना पढ़ा दिया है, so उतना ही हम लोग भी अपना कुछ हद तक कवर कर लें. तो रिपुंजय, एक बार चाहे तो तुम भी मुझे एक बार पूछ के बता दो क्लास में, मैं भी कोऑर्डिनेट कर लूंगा वैसे. तो एक बार हाँ, तुम भी सब पूछ लो कि कितना बाकी सेक्शन हो गया. आई एम प्रीटी श्योर यूनिट 2 तो उनकी भी खत्म होने ही वाली होगी आई गेस अब तक. Okay, sir. हाँ, तो पूछ लो. तो नेक्स्ट वीक वील हैव एटलीस्ट वन क्लास, वन और टू क्लासेस. तो वील ट्राई टू डू एटलीस्ट 20
20-30% हम एटलीस्ट यूनिट 3 अपनी शुरू कर लेंगे। और मैं आपको एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल बेस्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है आपका, वो मैं संडे तक दे दूंगा आपको। संडे क्या, आई ट्राई टू गिव इट बिफोर संडे या फिर मैक्सिमम बाय संडे। And then just before your CT, I'll try to give you this one a big subjective assignment so that आप लोग आराम से अपना रिवाइज क्विकली रिवाइज कर लें। तो ये भी मैं आपको ट्राई करूंगा देने के लिए मिड वीक में, ताकि आप लोग अपना रिवाइज कर लें। जो आपका DA2 जो कंपोनेंट का पार्ट होगा आपका, तो मैं उसके लिए भी आपको एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट दे दूंगा। सब्जेक्टिव होगा वो, जिसमें आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 से आपके 4 या 5 सवाल होंगे। ऑलराइट, आई विल ट्राई आई विल ट्राई टू गिव ओके इट टू आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू विद इन दिस वीक। वरना न्यूमेरिकल असाइनमेंट तो मैं आपको दूंगा ही, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट तो मैं आपको दूंगा ही इस यूनिट का। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। सो वील मीट देन नेक्स्ट वीक। रिपुंजय, यू लेट मी नो व्हाट हैज बीन डन इन द बैचेस जो हैं आपके। एंड प्लीज जैसे ही आपकी डेट आए, आपकी डेट आ जानी चाहिए सीटीज की अब इस आजकल में, लेट मी नो दैट। ओके, ओके सर। ओके। सर वन मोर थिंग सर, इसकी सर जो पीडीएफ रह रही है, सेकंड यूनिट की आई हाँ, मैं थिंक आज पीडीएफ। अब मैं सब आज अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। मैं ये वाली पीडीएफ ही आपको दे दूंगा, ये वाली पीपीटी भी दे दूंगा। और इससे पिछले वाली जो पीपीटी थी वो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था पूरी यूनिट खत्म होने का। नाउ दैट द यूनिट इज फिनिश्ड, तो मैं ये बोथ पीपीटी शेयर कर दूंगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, इधर अपलोड कर दूंगा या फिर यूट्यूब पे डाल के स्क्रीन जो आपकी जो लेक्चर जो वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं मैंने, वो भी शेयर कर दूंगा। ओके सर। Sir, if it is possible to share our QB, शेयर आर QB sir, QB question bank. क्वेश्चन बैंक शेयर कहाँ होता है? क्वेश्चन बैंक शेयर, आई डोंट थिंक क्वेश्चन बैंक शेयर होता है आप लोगों के साथ। सर क्लासरूम में होता था। यस सर, क्यूबी तो सर शेयर होता है ना। शेयर होता है क्वेश्चन। तो आई डोंट थिंक सो इसमें की जरूरत। आप लोगों को जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ ना, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्वेश्चन बैंक मेरे पास अभी ऐसा जिसका अभी इस यूनिट का मेरे पास है नहीं। मैं देखता हूँ, आई विल हैव टू देन आस्क। ओके, मैं सब पूछता हूँ एक बार। वरना आप असाइनमेंट्स तो करते रहिए, डोंट वरी। असाइनमेंट्स जो आपके क्वेश्चन असाइनमेंट में आ रहे हैं, वो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन बैंक कहाँ पे है इसका। तो जैसा वो मेरे को मिलेगा तो आई विल गिव इट टू यू। ऑलराइट, मैं दे दूंगा सर आपको। सर फर्स्ट असाइनमेंट चेक कब तक होगा? हो जाएगा यार, क्यों फिक्र कर, हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगता है सर ना यार। सीटी से पहले कर दीजिए सर, पता चल जाए कि कितने सही हैं या गलत हैं। आई विल ट्राई यार, मैं इसको ट्राई करता हूँ उसको करना। मैं इसको एक बार कोशिश करता हूँ करने की, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्चुअली लोड है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू ओके डू सर। इट, बिफोर द सीटी। लेकिन मैंने कुछ कुछ असाइनमेंट देखे थे ऊपर से। उसमें मैंने 2-3 बड़ी कॉमन मिस्टेक्स देखी थी। वो ये थी कि आप लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, कन्वर्जन आपका एनर्जी का नहीं कर रहे हैं। तो बस मुझे मैंने एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये देखी थी। अगर आपकी वैल्यू एमईवी में दी हुई है या ईवी में दी हुई है, तो ये जूल नहीं है। इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने बस एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखी थी। बट यस, आई ट्राई टू, आई विल ट्राई यार। मतलब जितना मेरे से हो सकेगा, तो आई ट्राई टू जितने भी मुझसे असाइनमेंट चेक हो जाए तो मैं ट्राई करता हूँ। तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मिस्टेक्स हैं वो ये हैं। अगर मैं असाइनमेंट चेक नहीं कर पाया, सो व्हाट आई डू इज आई डिस्कस द असाइनमेंट विथ यू। ठीक है, वो कर लेंगे। अगर मैं चेक नहीं कर ओके सर। पाया, तो Yes sir. असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो आई गेस वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको मैं वर्बली बता दूंगा कि क्या है। या फिर आई ट्राई टू सी कि किसने, या कोई ऐसा बच्चा हो जिसने सारा असाइनमेंट ठीक किया हो, तो मैं वो देख लूंगा एक बार। तो वो देख लेंगे, तो गिव मी दिस वीक्स टाइम, वो देख लेंगे कैसे करना है। ऑलराइट, ओके सर। ओके, ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं Thank you sir. फिर। ओके। थैंक यू सर।